زیادہ ہی خوشی ہو گئی تھی، اب معاملہ برابر کا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ میری بچی کا باپ ہے، میرا سہاگ ہے، اگر اسے اسی طرح بے رحم رہنا ہے تو مجھے موت دے دے یا اس کا پردہ ڈھک دے میرے مولا۔ مجھ سے حسنہ اور فرخ کی اذیت نہیں دیکھی جاتی۔ آغا جی، ان حالات میں حسنہ اور فرخ کو افریقہ بھی بھجوایا نہیں جا سکتا۔ بکا، جی سرکار۔ حقہ تازہ کر کے لاؤ۔ اچھا سرکار۔ کیا حالات ہیں؟ کیسے حالات ہیں؟ کب ختم ہوں گے یہ حالات؟ حسنہ پاگل ہو جائے گی۔ بھائی عابد میاں، یہ مسئلہ تو ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ اب دیکھو نا بھائی، ملک آزاد ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو پاکستان دیا، دنیا جہان کا مردم اس خطے زمین میں آ کے آباد ہوا، جنہوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی کبھی، وہ بھی یہاں آ کر مل گئے۔ لیکن علی میاں ایسے گئے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ 5ویں برس میں لگ گیا، لیکن انہوں نے کوئی خبر ہی نہیں لی۔ اما میں تو کہتا ہوں کہیں انہوں نے وہاں کوئی نکاح تو نہیں کر لیا؟ مرزا چچا، آپ علی کے مزاج سے تو اچھی طرح واقف ہیں۔ اما تم بیٹھو۔ بھائی شمشاد علی مرحوم بھی بڑے سیاسی دماغ کے آدمی تھے۔ جی ہاں، علی کا بھی یہی حال ہے، آزادی سے پہلے سیاسی کارکن تھے اور وہاں افریقہ جا کر تو وہ اور بھی کمیٹڈ ہو گئے ہیں۔ یہ اچھا کمٹمنٹ ہے، امت کی تو بڑی فکر ہے، بیوی بچے چاہے ہر سرپرستی سے محروم ہو جائیں۔ میں کوئی تعویل سننے کو تیار نہیں ہوں۔ احسن، میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، تم حسنہ اور فرخ کا ٹکٹ خریدو اور دونوں کو علی کے پاس بھجوا دو۔ مگر مامو میاں، علی کی بھی تو کوئی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کیا یہی طرح حزب المسلمین کو چلا رہے ہیں؟ بین الاقوامی نوعیت کی اسلامی تنظیم ہے تو ہزاروں کارکن بھی ہوں گے، ان کے بھی بچے بھی تو وہاں رہتے ہوں گے۔ تم اور احسن اس مسئلے کو الجھاتے کیوں؟ آغا جی، برطانوی اور فرانسیسی نو آبادیاتی نظام کے چنگل میں پھنسی ہوئی اسلامی مملکتیں ایسے حالات میں اسلامی تحریکیں پس پردہ رہ کر ہی کام کر سکتی ہیں۔ آپ پڑھے لکھے ہو کر کیوں جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ لو بھائی، اب مسلمان چھپ کر تحریکیں چلائیں گے۔ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر کام دشمنوں کے بیچ بیٹھ کر کھلم کھلا نہیں کیا جا سکتا۔ امو میاں، احسن کا اور میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر ان حالات میں حسنہ کو باہر بھیجا تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ سب علی کی غلطی ہے، وہ بلانا نہیں چاہتا بیوی بچوں کو۔ تمہاری ماں کا جملہ بار بار میرے ذہن میں گونجتا ہے۔ کیوں خاموش ہو جاؤں ڈپٹی صاحب؟ آخر انہیں میں نے اپنی بیٹی دی ہے کہ نہیں؟ اور کسی کا نہیں تو 4 دن کی بیائی ہوئی دلہن کا تو خیال کر لیا ہوتا انہوں نے، اور یہی سب کچھ انہیں کرنا تھا تو حسنہ میرے ہی گھر بیٹھی ہوئی کیا بری تھی؟ عجیب بات ہے، اس وقت ملک کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ میں بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ ہوتے ہیں سیاسی ذہن رکھنے والے خاندان جو تمام باتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم عام ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج میں بھی سوچتا ہوں کاش حسنہ کی شادی نہ ہوئی ہوتی۔ کچھ کرو عابد حسن، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ سب۔ اگر آپ اجازت دیں تو محسن کی واپسی کا انتظار کر لیا جائے۔ حسنہ، جی کیا بات ہے حسنہ؟ کچھ نہیں، میں وہ عابد بھائی، میں فرخ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرخ؟ جی، فرخ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فروخ مجھے کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا مادام، میرے ساتھ گھر ہی میں رہتا ہے، میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کبھی کبھی چپکے سے نظر بچا کر محلے کے بچوں کے ساتھ ہجوم میں گڑمٹ ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ آج تمہیں اپنا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے؟ ہاں مدام، آج بہت یاد آ رہا ہے۔ ویسے خیر سے اب یہ صاحبزادے ماشاءاللہ سے مدرسے جانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ مدام، فروخ نے قرآن کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ مبارک ہو۔ شکریہ۔ اگر حزب المسلمین کی اتنی اہم ذمہ داریاں تم پر نہ ہوتی علی، تم اپنے ملک واپس لوٹ سکتے تھے۔ یہ تمہارا ملک تو آزاد ہو چکا ہے۔ ہاں مدام، کبھی کبھی تو بڑا ٹوٹ کے جی چاہتا ہے کہ گھر واپس چلا جاؤ۔
मैं तुम्हारी बीवी के बारे में अक्सर सोचती रहती हूँ। क्या? ये कि वो एक बहादुर औरत है। पता नहीं, इतना जानता हूं सब्र की जाती है। दीन और सियासत को समझती है? थोड़ा बहुत, मगर इतना नहीं जितना आप जानती हैं। अगर इतना जानती होती तो शायद मैं ही आना होता। इसका मतलब ये हुआ अली कि तुमने जिंदगी के मुश्किल सफर में एक ऐसे हम सफर को साथ ले लिया है जो तुम्हारे कर्ब और अज़ियत के तो शरीक है, लेकिन तुमने उसे मंजिल के हसीन तस्वुर और आज़ादी के एहसास से महरूम कर रखा है। जी हाँ अली, वो तुम्हारी जिंदगी के मकासद से नाचना सिर्फ तुम्हारी जुदाई की तकलीफों से दो चार है। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो। आजाद कर दो? क्या जब कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बीवी है, मेरे बेटे की माँ है। वो मेरी जिंदगी के मकासद को समझे या ना समझे, मैं उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि तुम उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते। मैडम ज़ैनब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप शायद मेरे मुल्क की मुसलमान ख़वातीन के मिजाज से वाकिफ नहीं है। क्यों? औरत हूँ, औरत के एहसास का इदराक रखती हूँ अली। अगर इन तल्ख हकीकतों के बावजूद वो तुमसे वाबस्ता रहना चाहती है तो यकीनन वो एक पाकबाज बहादुर औरत है। अली, अपनी बीवी को खत लिखना तो मेरा सलाम जरूर लिखना। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। उसे किसी तरह का सुकून नहीं पहुंचा सकते तो उसे आजाद कर दो। मैं जो कुछ इस खत में लिखना चाहता हूँ, शायद अल्फाज में मेरी तहरीर की ताकत इस एहसास का साथ ना दे सके उसने। मैं ऐसा बाप और ऐसा शौहर बनना नहीं चाहता जो बीवी और बेटे का कोई हक तो अदा कर ना सके और सिर्फ अपनी मोहब्बत के वास्ते देकर तुम्हारी जिंदगी के सारे हुस्न और सारे मुस्तक़बिल को अपनी स्याहियों से वापस न करे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है, सरपरस्ती की भी और मोहब्बत की भी। जबकि मैं दूर रहकर अपना छोटा सा फरीज़ा भी बहैसियत शौहर या बाप का अदा नहीं कर सका। सब कुछ क्यों लिखा है? किस लिए? ये दूरी खत्म क्यों नहीं हो सकती अली? इस दूरी का फिलहाल मेरे पास कोई मदावा नहीं है हुस्ना। मैं तंजीम के सामने जवाब दे, ये सवाल तुम भी कर सकती हो। हाँ, ये सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। जवाब दे तो आप मेरे और फरूक के सामने भी है। आपने मेरे और फरूक के मामले में अपनी जिम्मेदारी कैसे भुला दिया?
भले अगर एक जगह कोताही हो सकती है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती? तुम मुझे झूठा, बददयानत, जो चाहे कह लो हुस्ना। अगर मैंने हिजबुल मुस्लिमीन की वफादारियों से मुंह मोड़ लिया तो मैं सारी मुसलमान कौम के सामने झूठा हो जाऊंगा। आप मेरी मोहब्बत का हक अदा करने से कासिर रहे। तुम्हारी मोहब्बत के हक अदा न करने का ही तो एजाज है हुस्ना कि मैं हिजबुल मुस्लिमीन से किए हुए हर अहद वफा को निभा रहा हूँ। तुम्हारे वक्ती जोश और जज्बे ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज की अदायगी से तुम्हें महरूम कर दिया है अली। हाँ, मेरे वक्ती जज्बे और जोश ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज, बीवी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी को भुला दिया था उसने। मगर अब सिर्फ फर्ज ही फर्ज है, जज्बात का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। उसना तुम्हें अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में हर फैसला करने का इख्तियार है। अगर ये मेरे हाथ में सजा भी होगी तो यकीनन हंसकर कबूल कर लूंगा। पाकबाज और बहादुर हुस्ना को मादाम ज़ैनब के सलाम के साथ अली का सलाम। कौन है मादाम ज़ैनब? अली ने सब कुछ क्यों लिखा है? क्यों क्यों लिखा है? कौन जाने परदेस कैसी दुनिया है। दिन बाबा ने ठीक ही कहा, देश परदेस की दो दुनियाओं के बीच बड़ी खंडती फर्क असल नहीं जानती तो आपको रोक लेते। बहादुर हुस्ना, मैं कहाँ की बहादुर बोली? तुम अभी तक जाते हैं? सो जाओ फर्क। जी अम्मा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं ये अब तक जाती हूँ। चलो सो जाओ बेटे। देखो मोहसिन मम्मा आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि फरूक इतनी देर तक जागता रहता है तो फिर मोटरें नहीं लाएंगे। इसलिए नहीं आते कि अम्मी जागती रहती है। हाँ, मैं अम्मी को अभी डांटती हूँ। भाई ये भी कोई बात है कि मेरे बच्चे से कहती हूँ सो जाओ और खुद जागती रहती हूँ। आओ चलो लेटो, आओ। सो गए ना? तुम्हारे अब्बू बस काम करते रहते हैं, न सोते हैं न जागते हैं। और तुम भी सो जाओ। देखो कल बड़े मम्मा के यहाँ चल रहा है ना, वहाँ मेरे बच्चे को बहुत सी मिठाई मिलेगी, फल मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे। बच्चे को जरा प्यार करके थपक के सुला दो ना, उल्टी सीधी बातें करती रहती हूँ उसे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई मोहसिन के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और क्या हो रहा है? ओहो, ये फैसला कब हुआ? कौन सा फैसला कब हुआ? यही कि मोहसिन बैरिस्ट्री के बजाय हलवाई की दुकान खोलेंगे। छोड़िए आपकी भी बातें। ये सब शौकत की कारस्तानियां मालूम होती हैं मुझे। मुमानी अम्मा, ये चाहती ही नहीं कि इनकी टक्कर की कोई और बहू आपके घर में आए। मैं क्या हूँ भला आबिद भाई, मोहसिन की दुल्हन तो मुझसे भी अच्छी और खूबसूरत आएगी। दबे दबे अल्फाज में अपनी तारीफ कर ही डाली कि हूं तो मैं भी अच्छी, मगर मोहसिन की दुल्हन और भी अच्छी आ रही है। वो ला रहे हैं एक अदद मेम। अरे छोड़िए, आप चची जान की सी बातें करने लगे। अम्मा चची जान के सामने जब भी मोहसिन का नाम आता है कह देती है खुदा न खास्ता मेम ला रहे। नौज दूर पार दुश्मनों के घर में आए मेम। दुश्मनों के घर में क्यों मुमानी अम्मा? हमारे घर में आएगी मेम। जॉली गुड। ऐसी बातें हैं। फिर चंदा पर गई थी ना आज स्कूल? कौन सी क्लास में हो? बहुत मेरी प्यारी बेटी है। हुस्ना, हुस्ना, कहाँ हो? अरे ये क्या कर रही हो हुस्ना? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। शाकुत भागे,
लेकिन ये चूड़ियां क्यों तोड़ रही हो? ये साबित भी थी तो मेरी मनहूस जिंदगी पे कौन सा फर्क पड़ गया था? तोड़ के कुछ फर्क महसूस हुआ तुम्हें? मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे अब ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा अपना भाई 5 साल के बाद घर वापस आ रहा है। वो दोनों एक साथ गए थे, एक साथ लौटे क्यों नहीं? रो लो हुस्ना, अच्छी तरह रो लो, फिर कुछ तुमसे कहूँ। ना आप कुछ कहे और ना मैं रोऊंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अब ये खाने पक रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा मोहसिन भाई के कपड़े सिलवा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायद मैं अपने बहन भाइयों तक से जलने लगी हूँ। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हुस्ना मेरी बात सुनो, तुम कानू जाओगी। कानू? कानू? हाँ, तुम्हारा भिजवाना किसी पर भारी नहीं। तुम जाना चाहती हो तो कुछ दिनों के लिए चली जाओ। आपको पता नहीं वो हम सब लोगों से नाराज है। मुझे तो ये तक पता नहीं वो चाहते क्या है। अगर वो मुझे बुलाते तो क्या मैं ना जाती? वो तुमसे नाराज नहीं है हुस्ना। अली के बुलाने या न बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जाना चाहती हो, चली जाओ। वरना अगर तुम्हारी यही हालत रही तो जानती हो क्या होगा? हाँ, एहसन भाई और मेरे आका जी, खुदा न खास्ता। सिर्फ एहसन और आका जी ही नहीं हुस्ना, ये रोशन भाभी जो तुम्हें हर वक्त हंसती बोलती नजर आती हैं, तुम समझती हो उन्हें तुम्हारा कोई दुख नहीं? ऐसा नहीं है हुस्ना। अच्छा हुआ आप आ गई रोशन भाभी। आप ही से कुछ समझाए, मेरी तो कोई बात इसकी समझ में नहीं आती। ये क्या किया? सारे घर को परेशान कर रखा। और इधर बैठो मेरे पास। कुछ नहीं हुआ, मगर ये आपकी चूड़ियों को क्या हुआ है? ये 2-2 पैसे की चूड़ियां, ये अफशा, ये काजल, इन सब की जिंदगी और उसकी खुशियों के सामने कोई हैसियत नहीं। अलबत्ता ये छोटे छोटे दुखों का ऐसा घूंघट तो बन जाती है जिनकी ओट में छुपी हुई बदसूरतियां बर्दाश्त की जा सकती है। बाजी, मैं सच कहती हूँ, मैं बहुत सब्र करती हूँ। हमें मालूम है तुम बहुत सब्र करती हो। तुम्हारे इस सब्र का सहारा ही तो है कि हम, आका जी और एहसन भाई, घर की दीवारों को थामे बैठे। अगर हिम्मत और सब्र ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो ये दीवारें तो इतनी पुरानी और पोसीदा है कि मिट्टी की ढेर की तरह बेआवाज बैठ जाएंगी। सुनो हुस्ना जी, ये हमारे जैसे कुंडे होते हैं ना जी, जिनके पास कोई दौलत नहीं होती, कोई जागीरें नहीं होती, अपनी छोटी छोटी रिवायतों और अपनी इज्जत का भरम कायम रखने के लिए जिंदा रहते हैं। और कभी कभी इस भरम को कायम रखने के लिए हमें अपना लहू भी पीना पड़ता है। जाओ, शौकत भाभी के साथ जाकर उनका हाथ उठाओ। पहले आप बाजी मुझे माफ कर दे। खुद इज्जत नहीं करती है और खुद मरम लगाने बैठ जाती है। चौदह गिन लीजिए खाने, मैं बेईमानी नहीं करती। आए हाँ अल्लाह मारा, ये तुमने बैठे बिठाए हुस्ना को नसीरा के घर क्यों भेज दिया? अब खैर से मोहसिन घर आ रहे हैं तो महीना 20 रोज तो वैसे ही नहीं जा सकेगी। मैंने सोचा चलो अब वो आए। देवर देखा था? चाची मैंने कुछ नहीं देखा। हुस्ना मेरे घर रह रही है तो मुझे क्या जरूरत है कि ब्याही बेटी के मामलात में बात बेबात दखल दूं। एक दफा उसे जेवर दे दिया, उसकी मर्जी यहाँ रखे चाहे किसी पे लुटा दे। वाह 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 भैया, ये तुमने खूब कहा कि चाहे किसी पर लुटा दे। अरे ये क्यों नहीं कहती हो कि नसीरा पर लुटा दे?
आप हमेशा नसीरा को इल्जाम देती हैं, हालांकि अशफाक अहमद 1000 बुरों के एक बुरे हैं। देखो मैं मानती हूँ कि मेरा अशु बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है, मगर एक बात बता दूं कि नसीरा जो अशु के कान में फूंक देती है करता वही है। अच्छा चलिए अब रहने भी दीजिए। अरे रहने कैसे दी, ये मैं तुम्हें बता दूं कि मुमताज अहमद की कमाई मुफ्त की नहीं है। पहुंची ना और सच लड़ा तो मैंने उसे फर्रुख की बिस्मिल्लाह पर पहने देखा था, उसके बाद नहीं दिखाई दिया। सब चीजें देख लो तुम अपनी। ये देखो, ये तुम्हारे झुमके, ये हार, ये है बीबी, लो लो रखो संभालो। नसीरा आपा, कल आपके साथ क्या होगा? जो मेरे मुकद्दर में लिखा होगा मेरी बहन। मैं तो अपने नसीब के लिखे को भुगत रही हूँ ना। बस इतना ही होगा ना कि कल सवेरे जब वो कोठरी खोलेगा और उसमें ये जेवर नहीं होगा तो मेरे जिस्म पे 2-4 मील और पड़ जाएंगे, मगर मैं अपने परदेश में पड़े हुए भाई के सामने शर्मिंदा तो नहीं हुई। नसीरा आपा, एक बात कहूँ आपसे? नसीरा आपा, आप अशफाक भाई को छोड़ दीजिए। क्या? या फिर उसी तरह की बन जाइए। जिंदा रह भी गई तो पागल जरूर हो जाएगी। अरे पगली, बुरा बनने में कितनी देर लगती है, और मैं तो हूँ ही बुरी माँ की बेटी। तायम्मा जब मेरी माँ को बुरा कहती है तो गलत नहीं कहती हैं, वो थी ऐसी। उन्होंने छोटे से कुंबे के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तुमने देख लिया मेरा हशर। अगर मैं माँ जैसी बुरी बन गई तो फिर अपने इतने अच्छे भाई की बहन कैसे कहलाऊंगी? कौन मुझे अली की बहन कहेगा? मेरा भाई जो हजारों में बेमिसाल है, हजारों में बेमिसाल है। नसीरा आपा, अशफाक भाई को आप पर रहम नहीं आता। अरे पगली, उससे तो कोई ये पूछे कि बेरहमी के चेहरे कितने और कैसे कैसे हैं। छोड़ इन बातों को, क्या बातें ले बैठे। मैं तो बस इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जब से ये हिम्मत दी है तो मेरे घर में चिटाक आटा दाल चावल तो पड़ा रहता है। नहीं तो इससे पहले तो मैं एक एक दाने के लिए जब तक भीख की तरह नहीं मांग लेती थी, मुझे नसीब नहीं होता था। नसीरा आपा, जेवर में नहीं ले जाऊंगी। तो ठीक है, तुम मुझसे मेरे अपने ही घर में डाका डलवाओगी। ये जेवर तो मैं उसके हलक से नीचे उतरने नहीं दूंगी, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना उतार ले। अल्लाह का वास्ता नसीरा आपा, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे जेवर पर। आपसे बढ़कर थोड़ी है ये जेवर। अली आ जाए, अली आ जाए, अली आ जाए नसीरा आपा, तो इन हसरत के हलक से मैं एक एक सर्रा निकलवा लूंगी आपके हक का। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुदा खुश रखे मेरे भाई को। हुस्ना जी, मौसीद कब आ रहे हैं? हुस्ना, अच्छा है, मौसीद कब आ रहे हैं? हुस्ना, क्या बात है हुस्ना? कल आप हुस्ना, हुस्ना, मोहसिन, मोहसिन, आ जाओ। मोहसिन, यकीन मानो मेरा बड़ा जी चाहता है कि तुम आज पाकिस्तान में होते। मालूम है क्यों? इसलिए कि वहाँ तुम्हारा बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। यहाँ तुम्हारा दिल लगना मुश्किल है। मैं पाकिस्तान हमेशा हमेशा रहने के लिए तो नहीं जा सकता। अच्छा? हाँ, 2-4 महीने रहूंगा, उसके बाद वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा। क्यों? खैरियत? खैरियत। मोहसिन,
یہ گھر والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. میں اتنے عرصے سے یہاں پھنسا ہوا ہوں, تم اتنے عرصے کے بعد گھر جا رہے ہو. بھی ایسی بھی کیا جلدی ہے, وہاں جا کے شادی کر لینا. تمہاری بہن حسنہ, روشن آپا, شوکت بھابھی سب نے درجنوں لڑکیاں دیکھ رکھی ہے تمہارے انتخاب کے لیے. نہیں بھائی, شادی تو میں آنا سے کروں گا. کوئی برطانوی لڑکی؟ آئرش. آپ ناشتہ کر لو. ناشتہ کھانوں میں, اور وہ بھی آپ کے گھر؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ صحیح ہے علی بھائی کہ یورپ میں رہ کے کچھ عادتیں بدل جاتی ہیں. اپنے آپ کو اتنا نہ بدلو کہ آئینے میں اپنی شکل بھی نہ پہچانی جائے. آپ اپنے آپ کو جس طرح بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں علی بھائی, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نہ شامل ہو جائیں. تمہیں کیا پتا, میں تو کروسیڈز کی دور سے گزر رہا ہوں. جی مجھے سب پتا ہے. کبھی آپ لیبیا میں ہوتے ہیں, کبھی کائرو میں, کبھی جدہ میں, اور مجھے حسن بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ سوڈان میں آپ فرینچ گورنمنٹ کے سال بھر سرکاری مہمان بھی رہے ہیں. اور آج صبح جس قسم کے مولوی نما عربز اور افریقنس میں آپ گھرے ہوئے تھے, وہ بھی مجھے صلاح الدین کے جنرلز ہی لگ رہے تھے. مزو صاحب, آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ عالم اسلام اور مسلم افریقہ کی تمام بڑی اسلامی تحریکیں جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی ہیں. تو جن مولوی نما لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی اطلاع کے لیے آج کے عہد کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. چھوڑیں علی بھائی, اسلام اسلام اسلام, بہت ہو چکی اسلام. دنیا بہت بدل گئی ہے. بس سطحی اور سپاٹ گفتگو کرتے ہو مجھ سے. تمہارا یہ جملہ جو ہے نا, دنیا کی ہر بوگس بات سے زیادہ پیٹا ہوا جملہ ہے. جہاں سے یہ لفظ سیکھ کر آئے ہو, کبھی تم نے ان لوگوں سے نہیں پوچھا کہ اسلام اور مسلمان اگر اس ماڈرن دنیا کے سانچے میں فٹ نہیں بیٹھتے تو پھر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ پھر کیوں ہر نظریہ, ہر عقیدہ, ہر مذہب اسلام کو نشانہ بنایا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف کیوں اتنا زہر اگلا جا رہا ہے؟ موسی صاحب, کمزور لوگ, کمزور عقیدہ, رد کی ہوئی قوم, یہ تو تذکرے کے لائق تک نہیں ہوتی. علی بھائی آپ تو بہت جذباتی ہو گئے ہیں, بہت جذباتی. صاحب, آپ جیسے نادان مسلمان اسلام دشمنی میں اگر جذباتی ہو سکتے ہیں نا, تو میں تو خود کو مسلمان کہتا ہوں اور فخر کرتا ہوں. ساری محسن, ویسے آئندہ سے تمہاری میری گفتگو کا موضوع جو ہے نا کچھ اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہاں سے تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے. کافی پیو گے؟ یہ بتاؤ, آنا کیسی لڑکی ہے؟ ٹھیک ہے, جیسے عام یورپین لڑکیاں ہوتی ہیں. تھینک یو. آپ کہاں کام کر رہے ہیں؟ ایک یہودی فارم ہے. کہہ دو محبت اسلام کی اور خدمت یہودی کی. نہیں علی بھائی, نہیں, میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ شاید ناراض ہو جائیں گے. کیا نام ہے آپ کی فرم کا؟ ڈیوڈ اینڈ سارا. ڈیوڈ اینڈ سارا. ڈیوڈ اینڈ سارا, یہ اینگلو امریکن کارپوریشن, وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں, اس کی پارٹنر ہے یہاں پر. جی, ڈیوڈ کوہن. ہاں, اس کی بیٹی سے میں ایک بار پیرس میں ملا تھا. بڑا ٹپکل ایشیائی نام ہے اس کا. نجم السحر. یس, نجم السحر. Are they Africans? No, Arab Jews. نجم السحر ڈیوڈ کی اکلوتی بیٹی ہے.
and she's a lawyer. फर्म की लीगल एडवाइजर है। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ, आप स्कूटर जाएंगे? मैं मोहसिन आज नहीं जा रहा। आज मुझे नजम हुसैन ने अपने घर मशवरे के लिए बुलाया। मादाम नजम साहब तशरीफ ला रही हैं। मसाल खैर सैयद अली। मसाल खैर मादाम। तशरीफ रखिए। अंदर आप अपने मेहमान की तवाज़ु नहीं करेंगे? जो मशरूब भी पसंद फरमाए सैयद अली। इसलिए यहूदियों के घर में किसी दुनिया में मदद की कमी नहीं। आप फल का नाम बता दीजिए। ऑरेंज जूस। ठीक है, हमारे लिए भी ये ले आइए। मेरे फैशन डिजाइनर आपसे बहुत मुतासिर हुआ। एक्चुअली मैडम वो नाइजीरिया के रेशमी और सूती कपड़े देख के हैरान हुआ। नहीं, वो कह रहा था कि आप बेहतरीन मेजबान हैं। मैडम वो आपके मेहमान थे और उनकी मेजबानी मेरा फर्ज था। थैंक यू। ये फ्रेंच कहाँ से सीखी आपने? यही कानून और सुकोटू में आके। एक जाती सवाल करना चाहती हूँ। जी। हर वीकेंड पे आपको स्कूटर से कानो आना और वापस जाना खासा मुश्किल लगता होगा। अगर आपको मकान का प्रॉब्लम है तो हमारी कंपनी डेविड सारा उसका इंतजाम कर सकती है। मैडम बात असल ये है कि मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ तो वहाँ तो हम लोग दिन में मीलों पैदल चलते हैं। मेरे ख्याल में वैसे भी कानों से शिकारो को बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 मील का फासला होगा। वैसे बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसपोर्ट इज नो प्रॉब्लम। तो आप रहना चाहते हैं कानून में? तो मैडम मैं ये फाइल्स दे आया था। मैं पापा के इसरार के बावजूद इस पर्टिकुलर अमेरिकन के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करना चाहती है। आप अपने वालिद के उसूलों को समझते हुए ये बात कह रही हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको अली कह दिया। आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं मैडम, मुझे आप कल से इतना कहना अच्छा लगा। हाँ, मैं कह रहा था कि ये तीसरा साल है मुझे आपकी फर्म में काम करते थे और इस तमाम अरसे में मैंने मिस्टर डेविड को कम से कम किसी जीव के साथ मुआहदा करके खत्म करते हुए नहीं देखा। आपका मतलब यह है कि मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ वादा करके तोड़ना यहूदी सवाब समझते हैं? आई एम सॉरी मैडम, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ अली, आपका ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं तो नहायत सच्चाई के साथ एक हकीकत की नकाबपोशाई कर रही थी। ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम हुआ कि रोको एक यहूदी? बड़ी सिंपल बात है मैडम। माली एतबार से किए जाने वाले तमाम तिजारती मुआहदे इस साल के जो हैं उनमें ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है। आपको एतराज क्या है?
मुझे रोको पसंद नहीं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन नापसंदीदगी की कोई खास वजह तो नजर नहीं आती मुझे। मुझे रोको से हर कीमत में निजात हासिल करना है अली। पापा इजराइल पार्लियामेंट में अपने वजारत के ओहदे के ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए अपनी हर कीमती मिल्कियत इन अमेरिकन ज्यूज के पास रहन रख देना चाहते हैं, और वो मुझे भी अपनी ही मिल्कियत का एक हिस्सा समझते हैं। मुमकिन है वो आपके लिए यही बेहतर समझते हो। उनके समझने से क्या होता है अली? मैं तो किसी ऐसे शख्स से शादी का तस्वुर भी नहीं कर सकती जो हॉलीवुड की हर एक्ट्रेस को बेश कीमत हीरे प्रेजेंट करना और चीप मैगजीन्स में तस्वीरें छपवाना अपनी शान समझता है। अली, अली मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इन पिछले 3 साल में मैंने आपको हर तरह से आजमा लिया है। दयानत, शराफत, इल्म, एतमाद, एक मुकम्मल शख्सियत जिस पर जिंदगी के हर मामले में भरोसा किया जा सकता है। बादिस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में वापस लेना चाहता है। बादिस से कहीं अपनी हैसियत पहचान, आप यही मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे। लेकिन अली, आपने मेरी बात का जवाब नहीं, या फिर मैं ये समझने के यहूदी मर्दों की तरह आपको यहूदी औरतों पर भी एतमाद नहीं। मेरी शादी हो चुकी है माता। जानती हूँ अली, आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। मैं तो पाकिस्तान में आपके घर के एड्रेस तक से वाकिफ हूं, किसी बुरी नीयत से नहीं। आपकी शख्सियत ऐसी मसूर कुन है कि आपके बारे में किसी को भी एक मुखलिसाना तजस्सुस पैदा हो सकता है। लेकिन यकीनन आप एक हकीकत से वाकिफ नहीं। मैं एक बेटे का बाप भी हूं। नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं, इसलिए कि दफ्तर से पोस्ट किए जाने वाले खतों पर मिसेज अली रजा का नाम तो पढ़ा जा सकता है, खतों को खुला नहीं किया सकता। मैडम, साहब को आपने लिटरेचर से ज्यादा पसंद किया। यकीन मानिए कि आपकी इस हिमायत खास के बावजूद अगर मैं चाहूं भी तो ना अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूं और ना आपके खुलूस का नाजायज फायदा उठाना पसंद करूंगा। यह आपके लिए मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमान भी हो सकती हूँ अली, और सियासी जिंदगी में आपकी मददगार भी। आकाए दाऊद ऐसे खिलाफ उम्मीद जल्द वापस आ गए। उन्हें जरूर ये डर होगा कि मैं रॉको की डील की मुखालफत करूंगी। Hello, my darling, my doll, my love, साहब। हेलो पापा। खुश हो जाओ कि रॉको नैरोबी पहुंच चुका है, इसीलिए मैं भी से जल्दी वापस आ गया हूँ। You know something, पापा? What? रॉको के साथ अब किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं होगा। Why? Give me one good reason. इसलिए कि मैं ऐसे गैर मुल्की और बेदीन यहूदियों के साथ किसी किस्म का कोई तजारती मुआहदा नहीं करना चाहती पापा, जो ज़हूर मसीह से पहले नया माबद तामीर करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। शरीफ, मेरा ही कहा हुआ जुमला मुझे सुना रही है। हेलो अली, हाउ आर यू? थैंक यू सर, वेरी वेल फाइन। अली, तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पर मुसलमान होने के बावजूद हर तरह का एतमाद किया जा सकता है। इसको समझाओ, ये अमेरिकन वेंचर हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे ख्याल में ये मामला आपके और मादाम के दरमियान तय होना चाहिए। मैं तो एक मुलाजिम आदमी हूँ, आप जो कुछ हुक्म देंगे बजा दूंगा। राइट, वेरी राइट। ऑफिस कैसे चल रहा है? जी
मैं मादाम के साथ लीगल सेक्शन में काम कर रहा हूँ। लीगल सेक्शन? सवाल खैर मादाम। सवाल खैर अली, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझे आज यहाँ काम करते हुए पहली बार उलझन और घबराहट हुई है। मुझे मालूम है आपको यकीन उलझन हुई होगी। मैं माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल मादाम आप मेरा मशवरा माने ना तो 2 दिन तक की सहमत ना करें। कमाल कर रहे हो, 2 दिन सफाई नहीं होगी? 2 दिन सफाई जरूर होगी और मैं खुद अपने हाथ से सफाई करूंगा। और जब 2 दिन के बाद आप तशरीफ लाएंगे ना तो मैं आपको अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल होता है कि तुम जैसे मसरूफ होता था आदमी को घर के काम का बोझ ही होना चाहिए। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। मोहसिन, मैं 10 बजे तक तुम्हारे जागने का इंतजार करके ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता मेज पे रखा हुआ है। 12 तारीख को तुम्हारी सीट जहाज प्रिंसेस पर बुक है। बुकिंग ऑफिस वालों को फोन कर लेना। आप लोग 2-4 दिन कराची और ठहर जाते तो क्या हो जाता? मुमकिन मोहसिन दूसरे जहाज से आ रहे? कैसी बातें कर रही हो रोशन। एहसन और मैं कराची गए थे मोहसिन को लेने के लिए। कोई बेमकसद अहमकों की तरह बंदरगाह पे घूम फिर कर वापस नहीं लौट आए। मोहसिन दूसरे जहाज से तो आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल आ सकते थे, मगर जिस जहाज का नाम लिया गया प्रिंसेस, वो जहाज तो आ गया, लेकिन आपके बरादर मुकर्रम तशरीफ नहीं लाए। ये जहमत भी गवारा नहीं की कि अगर नहीं आना था तो कम से कम इत्तला तो दे दी होती। मोहसिन इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है। गैर जिम्मेदारी उसकी फितरत है रोशन। विलायत जाकर आदमी की फितरत नहीं बदल जाती। आप जब से विलायत से आए यही कहे चले जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया है मोहसिन में? क्या मतलब है आपका? बताते क्यों नहीं आप? ओहो, बुरा मान गई हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा। बताइए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन मियाँ विलायत से वापस आ जाएंगे तो पत्थर मारने लग जाएंगे। पत्थर मारने लग जाएंगे? क्या करेंगे मोहसिन जब आएंगे तो? उनका रवैया बदल चुका होगा। यूरोपियन से ज्यादा यूरोपी बनने की कोशिश करेंगे। आ गया समझ में? ये लीजिए। ओह थैंक यू। आप मुस्लिम टाउन जा रही हैं आज? तो समझ में नहीं आ रहा राजा साहब की बेगम साहब से क्या कहूँ। मेरा ख्याल है मुमानी अम्मा और चची जान को ये कह दिया जाए कि मोहसिन और तलत की मंगनी की बात ठहराने से पहले ये सोच लें कि मोहसिन की मंगनी मोहसिन की मर्जी से होनी चाहिए। मैं जो हमारी मर्जी तो हमारे लड़के की मर्जी। अफीफा, मैं देखो हम तुम्हारे घर आए हैं तो हम मंगनी की तारीख लेकर ही जाएंगे। सर आंखों पे चची जान, कल शाम डिप्टी साहब तशरीफ लाए थे। उनका भी यही ख्याल है कि मौसमिया का आने का इंतजार कर लिया जाए। डिप्टी साहब यही कह रहे थे मुझसे भी, लेकिन बस चची जान को इस कदर जल्दी थी मिठाई मंगा आ गए सामने मिठाई। ये अरे उधर से लेके इधर यहाँ सामने लाके रखो। हाँ तो बस बसा काहे का है। देखो भाई, अगर मोहसिन मियाँ की यहाँ शादी की मर्जी ना होती तो वो विलायत से मेम ले आते। अबे विलायत में मेम का मिलना क्या मुश्किल है, मारी मारी फिरती है टके से। आप जो वो यहाँ आ रहा है तो उसको रोकने की बेहतरीन तरकीब है कि आते ही पाँव में बेड़ियां डाल दो, जल्दी शादी कर दे। चुप रहा, हर बात में पटपट पटपट बोल ही चल जाती कम वक्त बेचारी। ठीक कहे या गलत कहे, दिमाग में जो बात थी वो तो सब निकल गई। क्या कह रही थी मैंने? आप कह रही थी पैर में बेच डाल। हाँ, सारे विलायत के मजे भूल भाग जाएगा, अब आते ही गिरफ्ती में लग जाएगा। अल्लाह करे हर घर के बुजुर्गों को अपनी औलाद पे ऐसे ही एतमाद हो जैसे कि आप लोगों को है। मौसम कब आ रहे हैं? बस खैर से आजकल में ही आने वाले हैं। चलो ना चची। आफीफा भाई, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब क्या कह रहे चले? हाँ। बहुत देर हो गई, अब इजाजत दीजिए। आप कैसे हो सकता है, एक प्याली चाय तो पीती जाएगी। बहन वो तो 10 दफा आएंगे, अपना घर है, 10 दफा चाय पियेंगे। इससे कुछ अचानक निकल जाए तो इसका क्या माफ है। 50 में 10 में आएंगे आपको, आना जाना रहेगा। खुदा अल्लाह। ऐसा तुम कराची गए थे, क्या हुआ मोहसिन का? यार जी वो जिस जहाज से मोहसिन को आना था उससे तो वो नहीं आया। मैं तो जाकर खुद बहुत परेशान हुआ।
डिप्टी साहब मुबारक हो, मोहसिन की मंगनी की तारीख लिया है। मिठाई लेके आई हूँ मैं, मुंह तो मीठा कराऊं या मुमताज अहमद का। आपने मंगनी की तारीख लेने से पहले मोहसिन का तो इंतजार कर लिया होता। अब्बा चल रही है। ठहरो चची, नहीं मेरे पैर में वो दर्द बस बात यह है कि मैं तो कह रही थी, लेकिन चची जान चची जान चची जान चची जान, हर गलती का इल्जाम चची जान पर। आपको सोच समझ नहीं सकती, आपका अपना कोई फैसला नहीं हो सकता। वो लेकिन इस खबर नाराज होने की क्या जरूरत है डिप्टी साहब? मोहसिन अगर आज नहीं आया है तो कल आ जाएगा। और अगर उसने यहाँ पहुंचकर इस मंगनी से इनकार कर दिया तो? मोहसिन मेरा बेटा है, आपका भतीजा अली नहीं है, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। माँ मेरा ख्याल है आगा जी ठीक कह रहे हैं। मोहसिन के आने तक राजा साहब के घर रिश्ता करने की क्या जरूरत थी, और ना ही मंगनी की तारीख तय करनी चाहिए थी आपको। तो ये मशवरे मुझे फैसलों से पहले क्यों नहीं दिए जाते? आप और आपकी चची जान किसी से मशवरा लें भी तो न सोचना न समझना, इंसानों की शादी ब्याह को गुड़ियों का खेल समझकर खेलने बैठ जाती हैं ये औरतें। और हुस्ना अली की शादी का खेल किसने खेला था? उस खेल को भी खराब करने में आपका और चची जान का बहुत हाथ है। अरे जरा खौफ खुदा कीजिए डिप्टी साहब। खौफ खुदा है जब तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। हुस्ना को ब्याह कर भी आप मरहूम शमशाद अहमद और उसकी बीवी की कोताहियों को माफ नहीं कर सकी थी। अली दिल में खलिश लेकर गया था, वो तो इत्तेफाक है चला गया। यहाँ रह जाता तो कुछ बैद ना था कि आप खुद हुस्ना को घर बिठा लेते। तुम सुन रहे हो एहसन? अम्मा अली के मामले में हम सब थोड़े बहुत खतावार जरूर हैं। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। न अली का ताना मैं सुनूंगा, न मोहसिन की बात होगी इस घर में। मैंने दोनों पे लानत भेज दी। नहीं आते ना आए, जहाँ जी में आए शादी कर ले मोहसिन। ऐसे कोई गुलफाम नहीं कि राजा साहब की लड़की उनके इंतजार में बैठी रहेगी। देखो मुझसे इनकार के लिए न कहना। दलत के रिश्ते का इकरार आपने किया है, आप ही इनकार भी करेंगी। नाक में दम कर दिया है, आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। अम्मी क्या है बेटे? मैंने दोनों पर लानत भेजी। लानत भेज दी? इधर आओ बेटे, ये आप कहाँ से सीख के आए हैं कि लानत भेज दी? नाना जान कहे थे अब्बू पर भी लाना, मुझसे मामू पर भी लाना। फिर मम्मी लानत क्या होती है मुझे भी दे। मैं लानत आपको भी दी। देखो बेटे, ऐसे करे, अब्दुल्ला के घर में जो तुम्हारा छोटा सा घोड़ा है ना, आप उससे जाके खेलें। शाबाश। नहीं वो गंदा है। छोटा सा है, प्यारा सा है। ये गंदा है, नंगा है, निक्कर भी नहीं पहनता है, सुसु करते हैं। बीवी जी। हाँ बक्का। आपने बुनियादी आपा को मना किया था ना छुट्टी देने से। हाँ। वो चली गई। है? अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। बक्का घबराने की कोई बात नहीं है, मगर इस वक्त तुम फर्रुख मियां को बाहर ले जाओ, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे बड़े काम फर्रुख मियां तुमको घोड़ा दिखाएंगे। शाबाश शाबाश। हुस्ना बीबी। जी तीनों दादा। छोटी बीबी जी। ये लो बीबी। दीनू दादा, क्या आप मुझे को फूल क्यों देते हैं? अपनी फूल जैसी छोटी बीबी को फूल नहीं देगा दादा तो और किसे देगा? फूल जैसी बीबी? दादा, मैं तो पत्थर हूँ, बिल्कुल पत्थर। आपके दिए हुए इन फूलों से, राशन बाजी और शौकत भाभी की पहनाई हुई इन चूड़ियों से छोटी बीबी कब तक अपने आप को सुखी होने का बहलावा देती रहेगी? कभी ये भी सोचा है मेरे लोगों ने? जो मौला का भरोसा नहीं छोड़ते ना छोटी बीबी, वो अंधेरे में भी चिराग जला के रखते हैं। भले मुसाफिर अपना ही नहीं, कोई दूसरा ही क्यों ना हो। 5 बरस पहले दोनों जने गए थे ना, मोहसिन मियाँ और अली मियाँ। हाँ। तो मौला के भरोसे का चिराग जला के रखा तो मोहसिन मियाँ तो लौटे। एक ना एक दिन अली मियाँ भी जरूर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। हाँ बीबी, मेरा दिल कह रहे है, वो जरूर लौटेंगे।
जरूर लौटेंगे। नो मोहसिन नो, ये नामुनासिब है। ये नामुनासिब है। तुमने खुद को ही नहीं इनकार कर दिया। तुम नजम शहर से साफ कहते थे कि तुम एक आरिश लड़की से शादी का वादा करके आए। अब आप इस बात पर फटका रहे होंगे कि आपने नजम शहर से मुझे मिलवाया क्यों कही ये बात तुमने? महसूस तो यही हो रहा है कि ये सब आपको अच्छा नहीं लगा। यहाँ मेरे अच्छा लगने लगने का सवाल नहीं है। सवाल ये कि तुम वादा करके आए हो शादी का आना से। मैं रोमियो तो नहीं। ठीक है, मैं आना को हर पाकिस्तानी लड़की पर फौकियत दे सकता हूँ, लेकिन नजम शहर के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। मुझे मालूम है आपको ये सब अच्छा क्यों नहीं लगा। मुझे देखिए, मुझे तो ये बुरा नहीं लगा कि नजम शहर आपसे शादी करना चाहती है। प्लीज समझने की कोशिश करो। नजम शहर एक नादान औरत है। वो बगैर सोचे समझे अपने माहौल, अपने मजहब, अपने बाप सबसे बगावत पर आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुम्हें नहीं मालूम, उसका बाप जो है ना, बुनियादी जिद्दी, जालिम, सख्ती और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। लेकिन आपको ये सब नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि दोनों बाप बेटी आपकी बेइंतहा इज्जत करते हैं। ओह, अब मैं समझा आपको ख्वाब क्या है। क्या? मैं समझ गया। आप ये सोच रहे हैं कि नजम शहर मुसलमान होना और किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है, जबकि मैं किसी कदर कमजोर अकीदा रखने वाला मुसलमान हूं। क्या शक है? ये तो नजम शहर की खूबी है कि वो इस्लाम कबूल करके तुमसे शादी करना चाहती है। तुम शादी करने का फैसला करते ना, तो यकीन मानो कि तुम्हें उसके गैर मुस्लिम होने पर एतराज भी नहीं होता। हाँ, फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना बेकार। अगर तुम उससे सिर्फ इस ख्याल से शादी कर रहे हो ना कि वो दौलतमंद है, खुदा के वास्ते ये ख्याल दिल से निकाल दो, इसलिए कि उसका बाप उसको इस बगावत की सजा में हर नेमत से महरूम कर सकता है। आप भूल रहे हैं, मैं भी लॉयर हूं और नजम शहर भी, और मुस्तकबिल पर हमारी नजर भी है। जोड़ने वाली भाई, एक जरा सी मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। आप तो नजम शहर के बाप से ज्यादा जज्बाती होते हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि आप सिर्फ अपने आप ही को मुसलमान समझते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझने की कोशिश करो। अगर तुम आना के मामले में रोमियो नहीं बनना चाहते तो इस मामले को भी यहीं खत्म कर दो। पाकिस्तान चले जाओ। आपका ख्याल है कि मैं पाकिस्तान जाकर अपना फैसला बदल लूंगा? यकीन, लंदन से आकर तुमने यहां फैसला बदला है, ये भी हो सकता है। ये शादी होगी अली रजा साहब, आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज भी, लेकिन प्लीज आप उसको बताएंगे। अभी तक उसके ख्याल आपके बारे में। मैं उसे क्या ख्वाब बहकाऊंगा? उस जैसी बेवकूफ अहमक लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। मोहसिन, प्लीज, तुम कहीं जा तो नहीं रहे? जा। कहाँ जा रहे हो? होटल। मोहसिन, मेरा ये मतलब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हारे नजम शहर की भलाई के ख्याल से कहा। इट्स ऑलराइट। मुझे तो वैसे भी होटल जाना, मेरे यहाँ रहने की वजह से आपकी मेड तक तो भाग कर। इससे पहले भी तुम्हें कहना, मादाम ज़ैनब हिज़्ब मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ा कारकुन है, वो इस घर की मेड या मुलाज़िम नहीं है। इतनी अजीब बात है कि मैंने आज तक आपसे ये नहीं पूछा कि आप किन ग्राउंड पर मेरी बहन को पिछले 5 साल से छोड़कर यहाँ अफ्रीका में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ सियासी कार्रवाई में मुलविस हैं, और आप तो मेरी फेयर सी शादी करी है। खुदा हाफिज़। मिस्टर बुखारी, आप मेरे सेक्शन में कब से काम करने लगे? ये फैसला आपकी गैरहाजिरी में बादेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने किया है। सैयद अली कहाँ? वो चार्ज देने के लिए आज दफ्तर आए। क्या? जी, उन्होंने डेविड एंड सारा से इस्तीफा दे दिया। दफ्तर में है वो? जी हाँ। भेजिए उन्हें मेरे पास।
जी बेहतर है। अली ने ऐसा क्यों किया? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैंने इस्लाम कबूल करके उन्हीं के भाई से शादी कर दी। माता तशरीफ लाइए अली, और इन खूबसूरत फूलों का शुक्रिया। मुबारकबाद। मैंने मसला है तो नहीं लिखी थी। मैं समझ गई थी। बहरहाल आपको दोनों खुशियां मुबारक हो, कबूल इस्लाम और शादी। शुक्रिया अली, एक बात बुरा नहीं बनाई। जी नहीं, फरमाइए। मुझे जो लगता है जैसे आपको उतनी खुशी नहीं हो जितनी की होनी चाहिए। आप ठीक समझती हैं। मोहसिन अपनी जगह एक लायक और अच्छा इंसान है।